As you all know, our chief guest, who we all have been waiting to hear his thoughts, he is truly a visionary leader. He is a friend of industry, and he has championed several initiatives, reforms in the interest of industry and larger growth. So it's truly an honor to welcome our chief guest, Shri Piyush Goyal ji, to please address us. Let's welcome him with a round of applause. Thank you very much, Mr. Rajiv Singh. Shri Abhyuday Jindal, President, Indian Chamber of Commerce and Managing Director, Jindal Stainless. Mr. Shrikant Goenka, Chairman, Agriculture and Food Processing of ICC and Managing Director, Premier Irrigation. Mr. Aditya Bagri, Co-Chairman. All the distinguished friends from the industry, friends from the media, ladies and gentlemen. I'm truly delighted that the Krishi Vikram program is not only talking about transforming agriculture for a secure future for Viksit Bharat, but is also in a way celebrating India's story in agriculture. जो भारत में तरक्की हुई है कृषि के क्षेत्र में, वो वास्तव में अद्भुत है। पूरी जर्नी, क्या एक ज़माने पे हमारी सिचुएशन थी, आज हम किस मुकाम पे खड़े हैं, काफ़ी इंस्पिरेशनल जर्नी थी, कठिन भी थी, लेकिन हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों ने जिस प्रकार से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मेहनत की, जिस प्रकार से सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा, और जिस प्रकार से माँ भारत की धरती में जो ताकत है, जब ये तीनों चीजें एक साथ आई, तब जाके भारत का कृषि क्षेत्र इतनी तेजी से प्रगति कर पाया। कल ही हमने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि भी थी, जिसमें हमने याद किया कि कैसे हमारे पुराने समय के नेताओं ने कृषि क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया, विशेष ध्यान दिया, और ये सिलसिला वर्षों वर्षों से चले आ रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का जब नारा दिया, तब हम विदेश से हमारा अनाज काफ़ी लाते थे। जवानों की सैक्रिफाइस और अन्नदाता जिस प्रकार से देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुट गए, ये दोनों की वजह से आज हमारे देश की अपनी ताकत है पूरी दुनिया में। और आंकड़े देखें तो लगभग 4.5 लाख करोड़ का हमारा एग्री एक्सपोर्ट है। एग्री और फिशरी दोनों मिला के 4.5 लाख करोड़ का आज एक्सपोर्ट होता है। नई नई चीज़ें एक्सपोर्ट होनी शुरू हो गई हैं। कोई लीची एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई बड़ा पाइनएप्पल एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई लौकी कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं होती थी यहाँ से एक्सपोर्ट, उसमें भी अभी हमारा भारत का वर्चस्व बन रहा है। अभी यूके जामुन गए थे, फ्रेश जामुन। यूएई में प्लेन से भर के सामान जाता है, यूएई, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट और गल्फ के रीजन में। लीचियां पंजाब से अभी विदेश गई थी, दोहा, दुबई, अलग अलग जगह पे। मिलेट्स, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को प्रोत्साहन दिया,
अब पूरी दुनिया न्यूट्रिशन के लिए मिलेट्स के तरफ ध्यान दे रही है, दौड़ रही है। यहाँ तक कि भारत में मिलेट्स की शॉर्टेज की स्थिति आ गई थी। इतना ज़्यादा लोगों को रागी और इन सब अलग अलग प्रकार के मिलेट्स की स्वाद आने लग गया। हेल्थ के लिए तो लाभ है ही, स्वाद भी आने लग गया। कहने का तात्पर्य यह है कि आज जब आप सब मिलके विचार करने बैठे हैं कि भारत की आगे की यात्रा कृषि क्षेत्र की कैसे होगी, what will be the potential of our agriculture, agricultural growth, how will we become self-sufficient, self-reliant, how will our supply chains become more resilient, safe. We are not stuck tomorrow if one country stops the import of fertilizer from that country. We cannot be suddenly in trouble. We have to make sure the entire supply chain, whether it's seed, fertilizer, insecticide, pesticide, pumps, water pumps, whatever it takes, how we can become self-reliant and our supply chains can be resilient. This holistic vision is what we are all assembled here to discuss. I believe there have been some very interesting sessions during the course of the day. But I would like to focus on a few elements which I think if all of us were to work together as a team, if ICC takes the lead and engages with more and more farmer organizations, gets other industry bodies also engaged, and how can we make 4 or 5 items a national movement? And what are those 4 or 5 items? One, India is still a rain-fed agrarian economy. We are still not sure what the impact of climate change will be, how agricultural production varies. We have some good years, we have some difficult years. Depending on the climate, depending on rainfall, our production varies. Can we as a movement, and while irrigation is being supported, the Modi government has also spent 93,000 crores towards Krishi Sinchai, irrigation projects. States are spending almost lakhs of crores on irrigation projects. But they will always have a command area, a certain area they can cover. Drip irrigation has the potential to make Indian agriculture self-sufficient. It reduces the requirement of water by leaps and bounds significantly. And if we can make a mass movement not dependent on government subsidies, because government subsidies very often become a detriment to the faster rollout of a project. I have very often spoken about this in the context of the LED bulbs program. ये जो आज आप LED bulb देखते हैं सब जगह, इसमें भी 100 रुपए की सब्सिडी थी, पर वो सब्सिडी के कारण LED bulbs का विस्तार नहीं बढ़ रहा था. The moment government got out, the price of LED bulbs collapsed, fell drastically, volumes increased drastically, payment problems reduced in the industry, and today in the whole country, everybody is using LED bulbs. It's a business case, economical viable case. We have to make irrigation an economically viable case for the farmers. और अगर फार्मर्स को चाहे मुफ्त में भी बिजली मिलती हो, लेकिन उनको ध्यान है कि पंप चलाना, पंप बंद करना, पंप की मेंटेनेंस, 2 बार कॉपर वायरिंग को रिवायर करना. Once this understanding develops that spending, I don't know, 20-25,000 rupees per acre, ये ज़्यादा तो है नहीं, drip irrigation. That also is in a very extreme case. And moment you look at volume, suppose drip irrigation volume becomes 10x what it is today.
तो 25,000 में आ जाएगी, क्या मालूम 20 में आ जाएगी। अच्छी क्वालिटी की पाइप लगाना और ड्रिप इरिगेशन को अगर हम नेशनल मूवमेंट बनाते हैं, समझो जो भी लोग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स करते हैं वो अपने अपने फार्म्स जिससे उनको प्रोड्यूस मिलता है वो लोग पहल करें, वो इन्वेस्ट करके इनको ड्रिप इरिगेशन से लाभान्वित कर दें। Somehow the country needs to move towards self-reliance. Today so much water is being wasted because it just flows into the seas. But drip irrigation with small water bodies at the village level can transform India's predictability. अच्छी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि देश में कितना उत्पादन हर साल आने वाला है और उससे किसानों को भी पता होगा कि हमने क्या बनाना है। और मुझे लगता है एक्सपोर्ट को भी जब श्योरिटी होगी कि ये रेट पे, ये दाम पे इतना क्वांटिटी मुझे मिल जाएगा, तो एक्सपोर्ट बिजनेस भी बढ़ सकता है। अब एक्सपोर्ट बिजनेस सिर्फ कच्चा माल भेजना है या हमें प्रोसेस करके भेजना है। और मैं समझता हूं अगर हमें ये 4 लाख करोड़ को 20 लाख करोड़ करना है, जो संभव है, वी कैन इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 4 lakh crores to 20 lakh crores. But that will happen with processing, food processing, better quality of packaging. We have to design our packaging to suit the shelf life, better branding. After all, if you see rice, if you sell rice in loose sacks or loose package, unpacked, maybe basmati will sell at 80-90 rupees, 100 rupees a kilo. But there are brands which sell basmati at 300 rupees a kilo, 400 rupees a kilo. It may be more also, I don't know, I'm not the expert. सोना कोई पता नहीं, सोना मसूरी है कुछ, हाँ, या दावत या ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं। आई एम टोल्ड कि वो ह्यूज प्राइस पे एक्सपोर्ट होता है। पोटेंशियल है, पर अगर उसको सॉर्टिंग करें कि उसमें कोई कीड़े वगैरह ना हो, सॉर्टिंग क्लीनिंग करके प्रॉपर पैकेजिंग करें, ब्रांड बनाएं। We need some more agri-entrepreneurs or agripreneurs as you often call them to come in, work in partnership with the farmers. ये साझेदारी बढ़ानी पड़ेगी किसानों की और फूड प्रोसेसिंग की और एक्सपोर्टर की। अब आप लोग फ्लाइट पे जाते हैं, इंडिगो में तो हम सभी गए होंगे कभी ना कभी। 400 रुपए का दाल चावल खाते हैं, वो छोटा सा। अब उसके इंग्रेडिएंट्स की कभी कॉस्टिंग करो तो वैल्यू ऐड कितना होगा? 10 गुना होगा कि उससे भी ज्यादा ही होगा शायद। आप उसमें दाल चावल, उसकी जो भी प्रोसेसिंग करते हैं और पैकेजिंग, वो सबका खर्चा निकाल लो तो मुझे नहीं लगता 40 रुपए से ज्यादा। बाकी ऑफ कोर्स थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग कॉस्ट, ये सब हो सकता है, पर हम 400 रुपए में खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? पोहा भी उतना ही होगा, पता नहीं 250 रुपए है या 400 है पोहा, उपमा। मतलब मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं पोटेंशियल क्या है। अच्छा, दूसरी तरीके से देखो, आज कम से कम 4 करोड़ भारतीय दुनिया भर में, वो तो एकदम फैक्ट ऑफ लाइफ है। 4 करोड़ भारतीय मूल इंडियंस, ओरिजिनल इंडियन ओरिजिन के लोग दुनिया भर में, और फॉरेन में तो हम जानते हैं कि दे आर यूज्ड टू फास्ट फूड। ज़्यादा समय होता नहीं है, मियाँ बीबी भी काम करते हैं, बच्चे बिजी रहते हैं, तो उनको तो प्री पैकेज फूड्स ही चाहिए। तो आप इमेजिन करिए, अगर हम इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग जस्ट
raw things, if we start exporting processed food products, we can easily, even with our existing export, double or triple our exports. What we are doing today, new items to add होंगे. Similarly, like I spoke about irrigation pumps or drip irrigation, think about energy efficient pumps. If we can encourage our farmers, today they have to go in the middle of the night, because many parts of India, farmers को रात को बिजली मिलती है, रात को खेत में जाना पड़ता है. फ्री पावर जरूरी नहीं है कि समय पे मिलेगी. दिन में तो पॉजिटिवली फ्री पावर नहीं मिलती है, वो तो रात को ही मिलती है. अब एक एनर्जी एफिशिएंट पंप लगा दिया अगर फार्मर ने, तो बिजली तो कम होगी सो होगी. 4-5 साल तक देखना नहीं पड़ेगा कॉपर वायरिंग. हर बार कॉपर वायरिंग 2-2.5 हज़ार रुपए लग जाते हैं. नया पंप होगा, जहाँ 10 किलोवाट का पंप है वो 4-5 किलोवाट में काम चल जाएगा, 3 किलोवाट में काम चल जाएगा. बिकॉज ये सब बाबा आदम के ज़माने के पंप्स हैं. You can easily replace them with modern energy efficient half size or 1/3 size pump. They will have a chip connected to the mobile phone. You can switch on and off from home. It will tell you how much water has been pumped out. If you combine that with drip irrigation, excess water is also damaging agriculture. I think we all know that. Am I right? मैं तो कोई किसान एक्सपर्ट नहीं हूँ कृषि क्षेत्र का, पर एक्सेस वाटर भी डैमेज करते हैं. डू यू एग्री विथ मी? आप लोग एक्सपर्ट है ना. एक्सेस वाटर हेल्प करता है या डैमेज करता है? आप किसान हैं, डैमेज करता है. तो आपको अगर पंप अच्छा हो तो वो बता देगा कि कितना पानी निकाल के उसको फिर ऑटोमेटिकली आप प्रोग्राम भी कर सकते हो कि वो बंद हो जाएगा. और कंबाइन करोगे ड्रिप इरिगेशन से तो परफेक्ट उतना पानी आपके खेत में लगेगा. तो आस्ते आस्ते ग्राउंड वाटर भी ऊपर आएगा. आज पंजाब जैसी जगह में ग्राउंड वाटर कितना नीचे चला गया. तमिलनाडु में भी प्रॉब्लम है ना पानी की, है ना. तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस भी हैं. हर एक चीज के लिए दूसरे की तरफ देखना नहीं चाहिए. हमको मिलके इंडस्ट्री, किसान और एक्सपोर्टर्स अगर मिलके करेंगे तो ये फास्टर रिजॉल्व होंगी प्रॉब्लम्स. हमारी तरफ से हम पैकेजिंग, डिजाइनिंग, उसमें हम भी हेल्प कर सकते हैं. समझो आप लोग ने बोला कि लीची में बहुत स्कोप है, इंडिया ब्रांड की लीची हम अच्छी बना के अच्छी पैकेजिंग करके भेजना चाहते, तो हम सरकार की तरफ से वी कैन ट्राई टू रन एन इंटरनेशनल कैंपेन. हम सब एम्बेसीज को बोलेंगे कि आप लोकेट करके हमको 2 लीची कौन खरीदता है विदेश से. वैसे तो यूएई और ये 6 गल्फ के देश है, यहीं पर इतना डिमांड है, अनलिमिटेड डिमांड है. ओनली दिस 6 कंट्रीज, 1 करोड़ से ज्यादा तो इंडियंस हैं इन 6 कंट्रीज में. तो यू कैन जस्ट इमेजिन. और वहां पे एक एक चीज भारत के 5 गुना 7 गुना ज्यादा दाम पे बिकती है. तो इमेजिन करिए कितनी बड़ी मार्केट है वहां पे. स्पाइसेस, अभी टर्मरिक बोर्ड भी हमने शुरू किया है निजामाबाद में. स्पाइसेस का एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, पर और भी बहुत पोटेंशियल है. कॉफी एक्सपोर्ट तो लगभग डबल हो गया है लास्ट 2-3 साल में, डबल. अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहिए कि कॉफी की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, कॉफी की पैकेजिंग कैसे करें, क्या हम प्रोसेस करके और बेच सकते हैं, क्या ब्रांड बना के बेच सकते हैं क्या. तो जो आज लगभग $2 बिलियन यानी 15-16 हज़ार करोड़ का जाता है, क्या वो 30,000 करोड़ का जा सकता है. फिर उससे किसान से भी
एश्योर्ड सप्लाई के लिए किसान को भी ज़्यादा दाम मिलेगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू वी नीड अ होलिस्टिक विजन। जो आपने कृषि विक्रम कार्यक्रम किया है, एक प्रकार से ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर तभी होगा जब हम सोची समझी रणनीति के हिसाब से चलें। नेचुरल फार्मिंग में मैंने भी पता लगाया, मुझे पहले लगता था कि बहुत प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, मालूम पड़ा कि एकदम उल्टा है। आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड निकाल के नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाओ तो एक्चुअली 2 या 3 साल में प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। एक आध साल थोड़ा डिप हो सकता है, पर उसकी फिर वैल्यू अच्छी मिलती है, क्योंकि केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री, यू गेट अ प्रीमियम। ऑर्गेनिक फार्मिंग यू गेट एन इवन बिगर प्रीमियम। पर उसमें हमको केयरफुल रहना है कि चीटर्स को आइडेंटिफाई करके उनको एक्सपोज करना है। कुछ लोग ऑर्गेनिक के नाम पे चीट करते हैं, गलत ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट ले लेते हैं, और अभी हमने कई कंपनी को डी-नोटिफाई किया जो गलत सर्टिफिकेट दे रहे थे, और टाइट कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की सर्टिफिकेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लगा के, क्योंकि इंडिया की इमेज नहीं खराब होनी चाहिए। जो भी मटेरियल ऑर्गेनिक सर्टिफाई होता है, इट हैज टू बी जेन्युइनली ऑर्गेनिक। अगर हम रियली भारत का कृषि क्षेत्र को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, सरकार की तरफ से तो देखिए पीएम किसान योजना में हर एक किसान को 6,000 रुपये मिलता है, लगभग 80,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च होता है। 25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए, तो किसान को मालूम पड़े अपनी भूमि में क्या बना सकता है। अभी तक फर्टिलाइजर की कीमत को बढ़ने नहीं दिया है, और ऐसा कोई इरादा भी नहीं है कि वो बढ़े, तो उसके कारण सब्सिडी बढ़ते जा रही है। लाखों करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी में हर साल केंद्र सरकार 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फर्टिलाइजर के दाम बढ़े नहीं उसके लिए सब्सिडी देती है कि किसान के ऊपर बोझ नहीं हो। 1400 मंडियों को स्ट्रेंथन किया गया है, ई-नैम देश भर में, जिससे लोगों को पता चले क्या अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग भारत के हिस्से में क्या दाम चल रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और मैं कोट करता हूं, हमने कृषि को विकास का पहला इंजन माना है। कृषि को विकास का पहला इंजन माना है। किसानों को गौरव का स्थान देने का काम किया, और मैं समझता हूं कि चाहे वो 1400 मंडी जहां पे ई-नैम के माध्यम से प्राइस डिस्कवरी हो सकती है, चाहे वो अभी तक लगभग 4 लाख करोड़ पीएम किसान के माध्यम से जो किसानों को दिया गया है, चाहे वो हर वर्ष की फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, चाहे वो लगातार बढ़ता हुआ एमएसपी हो, जिससे किसानों को मिनिमम 50% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सुनिश्चित किया जाता है, और कुछ क्रॉप्स में तो उससे भी ज़्यादा। अलग अलग स्टेप्स लेके कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने का काम किया है। 15,000 हमारी बहनों को ड्रोन दीदी की ट्रेनिंग देके ड्रोन से अच्छी तरीके से इक्वल मेजर में फर्टिलाइज़र वगैरह स्प्रे हो सके, वो व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा रहा है। एफपीओज के माध्यम से किसानों को एडिक्वेट इंस्ट्रूमेंट्स या मैकेनाइजेशन के लिए इक्विपमेंट मिले, उसके लिए 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया, जिससे ट्रैक्टर्स हो, हार्वेस्टर्स हो, अलग अलग जो मशीनरीज लगती हैं वो शेयर्ड बेसिस पे कोऑपरेटिव या एफपीओ के थ्रू या कोई व्यक्ति लेके उसको रेंट कर दे, कोई स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर उसको
वहाँ पे लोकल एरिया में सभी को बुकिंग के माध्यम से किराए पे दे के उसको यूज़ करने की सुविधा दे. There are so many things happening in the country and so much more potential. So I would only urge all of you, this government, the Modi government, stands committed to continuously increasing the income of our farmers, strengthening their ability to produce more, increasing their productivity, encouraging intercropping so that they are not reliant on only one crop, encouraging fruits and vegetables, floriculture and horticulture. उदाहरण के लिए बनाना, अब आई एम टोल्ड बनाना तो ऐसी चीज़ है कि आप अपने बॉर्डर पे ही, फार्मर अपने लैंड के बॉर्डर पे ही बनाना बना ले तो अपने बच्चों का भी न्यूट्रिशन बन सकता है और एडिशनल इनकम भी आ सकती है. उसका आजकल टिश्यू कल्चर इतना अच्छा बन गया है. और बनाना इज एन एक्सेलेंट फ्रूट फॉर एक्सपोर्ट ऑल्सो, फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑल्सो. Very high nutritional value for the children. ऐसे अगर हम समझदारी से भारतीय किसानों को खेत से विदेश तक लेके जाने का काम करते हैं, हमारे एग्रीप्रेन्योर्स ग्लोबली कल्टीवेटर्स को कहाँ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो लाके भारत में भी ट्रेनिंग दिलाने का काम करें. अभी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने एक देश भर में कार्यक्रम किया था कृषि विज्ञान केंद्र से, फार्मर्स को प्रोडक्टिविटी और अच्छे सीड्स के बारे में सेंसिटाइज करने के लिए. वो भी कार्यक्रम की फीडबैक अच्छी मिली है. मिलेट्स में और भी पोटेंशियल है, जो फार्मर्स मिलेट्स की तरफ जाएं. मुझे लगता है कि आगे चल के एक कंसर्टेड एफर्ट करें कि अब ग्रीन रेवोल्यूशन के भी हमें आगे जाना है, प्रोसेस फूड का रेवोल्यूशन करना है. हमें रेवोल्यूशन करना है फार्मर्स को रेन फेड फार्मिंग के बदले इंडिपेंडेंट ड्रिप इरिगेशन बेस्ड फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लेके जाना है जिसमें पानी कम लगता है. हमने लगभग 75,000 देश भर में अमृत सरोवर बनाए थे, पॉन्ड्स. क्या वो प्रोसेस को और आगे बढ़ा सकते हैं? जहाँ जहाँ पॉन्ड्स हैं उसका डीसिल्टिंग करते हैं तो जो डीसिल्ट करके जो निकलता है वो बड़ा रिच होता है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. महाराष्ट्र यूपी में जो एक्सपेरिमेंट किया, जहाँ जहाँ वाटर बॉडी है उसको डीसिल्टिंग किया तो जो निकला सैंड निकली और उसको स्प्रे किया फार्म्स में तो प्रोडक्टिविटी शॉट अप 2 times and 3 times. इतना रिच होता है वो इन वेरियस मिनरल्स. तो अलग अलग तरीके से अगर हम सब मिलके FPOs, एग्रीप्रेन्योर्स, our startups, our food processing units and our exporters, we all work as a team, so then we can truly transform the agriculture sector. It will support our vision for a safe, secure and Atmanirbhar Bharat. It will take our local products to global markets and truly become the engine of growth, engine of Viksit Bharat. Thank you very much. Thank you, sir. It's always inspiring to hear your thoughts and the term which you gave, agripreneur. I think this is the thought exactly in the morning. Somebody said that the industrial growth will happen, but the capacity to employ with the AI and the automation is going down. But if agri is taken as business
And if farmer is empowered with the market linkage and the technology, I think what PM Modi said that agri is the priority number one, I think that can really transform. And with agri exports and the advice which you gave, although you mentioned you are not a farmer, but the kind of insights and the knowledge which you shared with everybody, I think those are really valuable. And ICC will be very happy to work on your advice and championing the cause of working with FPOs, creating the network, connecting with the markets and all.